اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، موجودہ صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو کہ قادیانی مرزئی اور یہودی دونوں کا مرکز ہے، اور انہوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا اور موجودہ القدس یروشلم کے اندر انہوں نے جو شب خون مارا ہے اور مسلمانوں کا قتل عام کی ہے۔ اس حوالے سے آج یہ سمجھ لیں کہ پہلی سٹریم ہم کر رہے ہیں اور اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔ ہم لنک شیئر کر دیا ہے ہم نے، اس لنک پر کلک کر کے آپ اگر گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہو سکتے ہیں۔ آئیے جی، سب سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور کچھ حقائق دکھا کے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کیجیے، اور یہ ویڈیو آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جائیں گی، اور اس قسم کی اور بھی بہت سی ویڈیو۔ یہ ویڈیو کیا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دو کلپ ہم نے لیے ہیں، دو کلپوں کو ایک کیا ہے۔ جو پہلا کلپ ہے اس کے اندر آپ کو جناب اسرائیل کے جو حیفا، اسرائیل کا ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جس کا نام ہے حیفا، اس میں قادیانی مرزائیوں کا سب سے بڑا جو مرکز ہے دنیا کا وہ حیفا کے مقام کے اوپر ہے، اور وہاں کے قادیانی مرزائیوں نے یہ ویڈیو لانچ کی ہے۔ یا ملاحظہ کیجیے، اس کے بالکل بعد مودی انڈیا بھارت کا جو وزیر اعظم ہے وہ اسرائیل کے اندر جاتا ہے، اور ایئرپورٹ کے اوپر جو یہودیوں کا اور اسرائیل کا جو صدر ہوتا ہے وہ ملاقات کرواتا ہے مختلف اپنے دوستوں سے۔ تو اس لائن کے اندر شریف عہدہ نام کا جو حیفا کا جو مرکز ہے قادیانی مرزائیوں کا، اس کا انچارج بھی کھڑا ہوتا ہے، اور جناب وہ آگے کیا ڈائیلاگ ہوتے ہیں وہ سارے آپ اس ویڈیو کے اندر سماعت کیجئے، پھر آگے تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اسرائیل کی یہ ویڈیو ہے، یہ انہوں نے خود بنائی ہے، ہم نے صرف یوٹیوب سے یہ ویڈیو لی ہے۔ آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کیجئے گا احمدیہ کمیونٹی ان اسرائیل یا حیفا، تو آپ کو بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی۔ In a country where they give us the freedom, the whole freedom to practice our religion. I have Christian, Jewish, Muslim, Baha'is, everything. یہ جو فریڈم کی بات کر رہے ہیں اور love for all, hated for none کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ یہ جو اسرائیل نے حملہ کیا القدس کے اوپر اور مسلمان بچوں کو مار دیا، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، جناب خواتین کو یرغمال بنایا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ ہے ان لوگوں کی فریڈم۔ یہ یہودی اور قادیانی مل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ Atheist friends, it's very important for me to have this kind of freedom. یہ قادیانی مرزائی ہے جی۔ To practice your faith freely without harassment, without, اسرائیل کے مسلم نیتا سے جب پردھان منتری ملے تو کس طریقے کی یہ جو خبر ہے یہ بھارت کے ایک چینل نے یہ نشر کی، اس کے علاوہ دنیا کے بہت سے چینلز کے اوپر یہ خبر نشر ہوئی۔ آگے جو ڈائیلاگ ہوا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کیجیے۔ امید ان مسلم نیتا نے پردھان منتری نریندر مودی کے سامنے رکھی، اور کیا جواب اس کا پردھان منتری نے دیا، سنیے۔ محمد شریف ہیڈ آف دی احمدیہ مسلم کمیونٹی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں شریف ہوں جو کہ ہیڈ ہوں احمدیہ مسلم کمیونٹی حیفا اسرائیل کا، اور پیچھے یہ اسرائیل کے جھنڈے وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس مودی کے بالکل ساتھ آپ کو نظر آئے گا اسرائیل کا وزیر اعظم اور دیگر ان کے جو وہ ہیں ہواری اور ساتھی، وہ لائن میں کھڑے ہیں۔
We want to thank you. Yes, we want to thank you. You help our community in India. वो कह रहा है कि भाई उधर तुम भारत के अंदर तुम हमारा ख्याल रखो, यहाँ पे हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तो मिल मिला के सब कुछ होगा, ये सब कुछ मिल मिला के होना है। तो आगे सुनिए। Thank you very much. You are very close to Azerbaijan. Yes, we know that you help. Thank you. वो कह रहे हैं बस शुक्रिया दोनों एक दूसरे का अदा कर रहे हैं कि हम जानते हैं हम दोनों किस मिशन के ऊपर। I will make history in India. Great. Thank you very much. जी जनाब, आपने वीडियो मुलाहजा कर ली है, इसके ऊपर मजीद तबसरा करते हैं और जनाब लिंक मैंने शेयर कर दिया है, इसके ऊपर आप थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें और इसके बाद फिर नमाज इशा का वक़्त है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं कहानी आपको सुना देता हूँ। ये कहानी की है, मिली भगत हो रही है। ये तमाम लोग जो हैं जिनका आप देखिए कि कुरान पाक में जा जाता है कि ये यहूद नसारा मुसलमानों के ये दुश्मन है, ये जनाब दोस्त नहीं हो सकते, ये दोस्त नहीं हो सकते। सूरह फातिहा के अंदर हम क्या कहते हैं, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। मग़दूब और दालीन लोग कौन है? वो यहूद व नसारा है। कहा कि इनसे बचाना, ये दुआ हर मुसलमान करता है, यहूद व नसारा से बचने की, इनकी दोस्ती से कि जनाब नफी करता, अल्लाह से दुआ करता है, इल्तिजा करता है। आप खुद अंदाजा कीजिए कि यहूदी जो कि मुसलमानों के अजली दुश्मन है, इनकी गुट्टी के अंदर बंधा हुआ है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान के अंदर ये इस चीज की सदा लगाते हैं कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन, इससे बच के रहना। ये कैसे हो सकता है कि जनाब इसराइल यहूदियों का जो मरकज है वहां पर मुसलमानों को नाम निहाद मुसलमान, वो कौन से मुसलमान? जो खुद इन्होंने मुसलमान बनाए थे, यानी कादियानी मरज़ई, उनको ये मरकज खोल के दे रहे हैं, उनको मरकज खोल के दे रहे हैं। आप कहानी समझ रहे हैं? कहानी समझ रहे हैं? ये कहानी क्या हो रही है? इसराइल की फौज के अंदर आज भी जनाब बहुत अक्सरियत है कादियानी मरज़इयों की। एक तरफ मिर्जा गुलाम कादियानी ने ये शोशा छोड़ा था कि जिहाद हराम है, जो कि वो अंग्रेज के खिलाफ था। उस वक्त इसने जिहाद के हराम करने का जनाब लगाया कि बस किसी तरीके से जनाब अंग्रेज बच जाए, क्योंकि अंग्रेज ने खड़ा किया, इन यहूदों नसारा ने इसको खड़ा किया था। और ये फतवा खुद मिर्जा गुलाम कादियानी से इन लोगों ने निकलवाया कि तू ये शोर मचा के जिहाद हराम हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब ये इसराइल के फौज के अंदर कौन ये जो जिहाद कर रहे हैं, तो अब क्या हलाल हो गया? अब हलाल हो गया मुसलमान के खिलाफ जब तुम गोली चलाते हो, जब गोली चलाते हो तो उस वक्त हलाल हो गया, उस वक्त जायज हो गया। और कहते यही है ये कादियानी मरज़ई कि हम तो जिहाद कर रहे हैं, हम तो जिहाद कर रहे हैं। तो ये असल में क्या है? ये कादियानी मरज़ई कम्युनिटी ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की मुखालफत के अंदर ये लोग, इनको खड़ा किया गया और यहूदी और नसरानी ताकतें जो थी, इस्लाम दुश्मन जो अनासर थे, उन्होंने इन लोगों को खड़ा किया। अब आप देखिए कि जिस तरीके से कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लेता है इंडिया कब्जा कर लेता है और जनाब एक कशमकश जारी है एक अरसे की इंडिया की और पाकिस्तान की, आप सब लोगों के सामने 1947 और 48 से लेके अब तक ये सिलसिला जारी है। एक छोटा सा इलाका उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं मकबूजा कश्मीर, यानी कब्जा किया हुआ है इन लोगों ने। अब आप लोगों के लिए ये एक नई चीज शायद होगी और तारीख से शगफ रखने वाले दोस्तों के लिए तो ये नई नहीं है, उनको तो पता होगा कि इसराइल ये मकबूजा फलस्तीन है, यानी असल में असल इलाका क्या है? असल जो इलाका है वो है फलस्तीन। उस फलस्तीन के ऊपर कब्जा किया यहूदियों ने, तो उसका खुद नाम एक इन्होंने डेवलप करवाया, इसराइल। ठीक है, अब मजीद ये कब्जा करते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहां पर एक और चीज भी मैं अर्ज करता चलूं कि जो मस्जिद अक्सा है
यरूशलेम के अंदर जो हेडक्वार्टर है इस पूरे फलस्तीन का, जो अभी जहां पर वो क्या है, वो ये जगह क्या है, इसके ऊपर मैं मजीद तफसीली वीडियो तो बाद में इंशाल्लाह करूंगा, अभी वक्त भी कम है, थोड़ा सा इब्तिदा बता के फिर आगे बढ़ते हैं। ये तीन बड़े बड़े जो मज़ाहब है इनके मबैन ये समझ लें कि ये कशमकश की ये जगह है, एक यहूदी, एक ईसाई और एक मुस्लिम। यहूदी कहते हैं ये हमारी इबादत गाह है, ईसाई कहते हैं ये हमारी इबादत गाह है, मुस्लिम कहते हैं ये हमारी इबादत गाह मुकद्दस जगह है। मेराज की रात जब क्या इसका नाम है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, वहां जाके तमाम अंबिया की इमामत करवाई, वहां से फिर मिराज के लिए रफा हुआ। किबला अव्वल भी है मुसलमानों का किबला अव्वल। यहाँ पर यह भी मैं अर्ज करता चलूं कि ये तीन मज़ाहिब शुरू से ही तकरीबन इबादत करते चले आ रहे हैं, शुरू से। आप ऐसे समझ लें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले यहूदी यहाँ पे इबादत करते थे, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए उसके बाद ये क्रिश्चियंस इन्होंने दो मज़ाहब इबादत करनी शुरू कर दी। अब जब इस्लाम का ज़हूर हुआ तो इस्लाम के लिए भी ये मुकद्दस जगह बन गई। तो उस वक़्त से लेकर के ये समझ लें कि तीन मज़ाहब के लिए ये एक मुकद्दस जगह बनी हुई है। ये जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो मुसलमानों की मदद के लिए गए थे, तो उस वक़्त भी जब इन यहूदियों से आज़ाद करवाया था सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो मरकजी वजह क्या थी? मरकजी वजह ये थी कि ये शब खून मार रहे थे, मजालम के पहाड़ तोड़ रहे थे। यही सूरत हाल थी जो आजकल है, बम फेंकना। उस वक्त तो बम नहीं थे, उस वक्त तो तलवार की जंग होती थी। तो ये लूट मार कर रहे थे और कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म था। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी मदद के लिए गए। अब हुआ ये कि जनाब जब मदद के लिए जाते हैं तो ये यहूदी डाकुओं से आजाद कराते हैं और कानून बनाते हैं कि ये इबादत करेंगे, इबादत के अंदर हम किसी के खलल नहीं डालेंगे। ये है इस्लाम का इंसाफ, ये है इस्लाम का इंसाफ। इबादत से नहीं रोका, हाँ पूरा मन तरीके से इबादत करो। तो जो हम यहाँ पे मिशन लेके आए थे कि तुम्हारा यहाँ गुंडागर्दी वो खत्म करनी, वो हमने कर दी है। हाँ इबादत करो, तसल्ली से करते रहो, तुम्हारे इबादत करने पे हम नहीं तुम्हें कोई रोकते। ये मौजूदा जो सूरत हाल है ये है कि यहाँ पे इबादत का रोला नहीं है, रोला है जमीन का रोला। ये चाहते हैं, यहूदी चाहते हैं कि मुसलमानों को यहाँ से खत्म कर दिया जाए और मुसलमानों का असर रसूख यहाँ से खत्म हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए। ये असल में ये मुख्तसर है, मजीद तफसील में इंशाल्लाह फिर कभी इसके ऊपर रोशनी डालूंगा। एक कॉलर आए हैं जी, अब्दुल कादर है शायद जनाब। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वस्सलाम। शादी फिलिस्तीन के मसले पर मेरा आपकी आवाज कट रही है जी। अच्छा और नहीं, आवाज किधर आनी है? अच्छा जी, बहरहाल यही थोड़ी सी गुफ्तगू करनी थी, टाइम शॉर्ट है यार बस। तो इसके ऊपर फिर बाद में गुफ्तगू करते हैं। मैं इशा के बाद भी इंशाल्लाह स्ट्रीम करता हूँ। तो अभी ये कुछ 2-4 दिन लगाएंगे हम यहूदियों की हिस्ट्री के ऊपर और ये सारे मामलात के ऊपर रोशनी डालते हैं, गुफ्तगू करते हैं। कॉलर तो कोई आया नहीं है, तो उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। और दूसरी यहाँ जाते जाते मैं ये अर्ज कर दूं एक छोटा सा पैगाम, वो यही है पैगाम है कि यार ये जो फेसबुक के ऊपर तुम लोगों ने जो शो डाला हुआ है वो जी वो बहुत वहां पे गोलियां बरसा दी हैं यहूदियों के ऊपर और बम फायर कर रहे हैं। और पता नहीं कौन सी तंजीम, कोई 1-2 तंजीम जागी है, वो हमास और ये वो जी बम बरूद फेंक रहे हैं। और वाह जी वाह, क्या ही बात है जी, मुसलमान जीत गए हैं जी, मुसलमानों ने यहूदियों के पड़खे उड़ा के रख दिए हैं, यहूदी भाग गए, ये देखो भाग रहे हैं, ये देखो वीडियो। और सब फ्रॉड है यार, कोई पागल ना बनो, पागल ना बनो।
वो कोई साबका वीडियोज, पता नहीं कोई फेक वीडियोज, पुरानी वीडियोज बना के ये खुद यहूदियों ने ये छोड़ी हैं, कादियानियों ने, कादियानी मर्जियों ने ये सोशल मीडिया पे ये वायरस छोड़ा और तुम लोगों को समझ नहीं है, अन्य वाह शेयर करते जा रहे हो और तुम्हें खामोश करवाया जा रहा है, तिफल तसलियां दी जा रही हैं कि चुप हो जा मुन्ने, चुप हो जा, बहुत हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत कमाल हो गया। उधर तुम्हें गाजर मूली की तरह वो यहूदी काट रहे हैं। ये वही सीन वही हुआ है कि अभी अभी आपने नहीं देखा कि वो रोडों के ऊपर जनाब वो शेलिंग हो रही थी, वो काटा जा रहा था, गोलियां बरसाई जा रही थी, बम बारूद फेंका जा रहा था, तो मीडिया ये दिखा रहा था नहीं नहीं वो पुलिस वाले मारे गए हैं, वो देखो ये देखो तोड़ रहे हैं, ये देखो तोड़ के आ रहे हैं, ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं ये लोग। तो मीडिया कुछ और दिखाता है, तस्वीर का रुख गलत दिखाता है, आंखें खोले साजिश हो रही है तुम लोगों के साथ। तो बस ये थोड़ा सा आप लोगों को बताना था, साजिश के ऊपर नजर होनी चाहिए आप लोगों की कि साजिश क्या हो रही है। वो तुम लोगों को दहशतगर्द साबित करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये देखो गोलियां तो ये हम पे बरसा रहे हैं, तुम लोगों को समझ ही नहीं आ रही। इतने फूले ना समाओ मुसलमानों, आंखें खोलो, ना समझोगे तो मिट जाओगे या मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तान। साजिशों के ऊपर नजर रखा करें, साजिश क्या हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, रब रख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद,